ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? पूजा क्या है मैम? एंड बिफोर नोइंग आयुष्मान एज एन एक्टर आई न्यू हिम एज अ फ़ैन, क्योंकि मैंने भी उसकी सारी पिक्चरें देखी थी, थिएटर में सारी पिक्चरें देखी थी। क्योंकि जैसे आप कह रहे हो, अगर आयुष्मान खुराना की पिक्चर है तो डेफिनेटली मज़ा तो आने वाला है, कुछ मैसेज मिलने वाला है। मैंने लगता है कि मतलब हाँ लेडी बनना मुश्किल है, लेडी होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। ये साड़ी समाज की एक गल है। बट 4 घंटों बाद मेरी दाढ़ी आ जाती सी ते दाढ़ी नाल साड़ी जाती नहीं सी ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ, ਨਾਨਿਆ ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? पूजा क्या है मैम? पूजा वधिया क्या है? पूजा बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। ਐਂਡ ਅਨਾਨਿਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਲਾਈਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਸੀਕੁਅਲ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਕੁਅਲ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, मैं सॉरी पंजाबी में जवाब नहीं दे पाऊंगी, पर मुझे हमेशा आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत प्यार मिलता है, घर वाली फीलिंग आती है हमेशा। मैं बहुत बार आ नहीं चुकी हूँ, पर हमेशा घर वाली फीलिंग आती है। एंड बिफोर नोइंग आयुष्मान एज एन एक्टर आई न्यू हिम एज अ फ़ैन, क्योंकि मैंने भी उसकी सारी पिक्चरें देखी थी, थिएटर में सारी पिक्चरें देखी थी। क्योंकि जैसे आप कह रहे हो, अगर आयुष्मान खुराना की पिक्चर है तो डेफिनेटली मज़ा तो आने वाला है, कुछ मैसेज मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड फिल्म, और मुझे भी हमेशा वैसे लगता था। दैट्स व्हाई जब ऑफर हुई थी मुझे पिक्चर, मुझे आयुष्मान वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मैंने हाँ भी कहा। डेफिनेटली सीक्वल है, मैंने पहली वाली पिक्चर देखी है, आई वांटेड टू वर्क विद मनजोत, आई वांटेड टू वर्क विद राज सर, तो देयर वर ओनली रीजंस फॉर मी टू से यस। ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੈਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? भाजी मेरे को ना हमेशा लालच होता है चंडीगढ़ आने का, एक अपनापन मिलता है, फैमिली है यहाँ पे, लोग इतना प्यार देते हैं, इतने प्यार से खिलाते हैं, और यहाँ का खाना, ओ माय गॉड, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आयुष्मान भाई दिल्ली से पंजाबी तो पंजाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तुम दस दो। हाँ सर, मैं दिल्ली वाली पंजाबी है तो मैं दिल्ली में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सुनने मिलोगे। तो यहाँ भाजी खाना, अपनापन, प्यार, फैमिली बहुत मिलता है, तो आई एम ग्लैड। हाँ जी भाजी, कुलचे खा के आया मैं, फुल एनर्जी है मेरे में। ਇਹ ਐਕਸੈਂਟ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਜਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰੇ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਵਲ ਭਾਈ ਬੜੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। और हाँ जी, मैं पूजा की आवाज़ गल कर सबसे क्लोज तो मैं हूँ। ਆਓ ही ਭਾਈ, इज माय बेस्ट फ्रेंड इन द फिल्म। ਭਾਜੀ ਮਨਜੋਤ ਭਾਜੀ ਫੂਕਰੇ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨੇ। हाँ, पूजा की आवाज़ का मतलब, हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। 25 अगस्त होगा मस्त, आइएगा जरूर। यार मैं रेडियो काम करता सी, तो मैं बहुत फायदा होया रेडियो काम करता सी। ਸੁਪਰ ਸੁਪਰ। इन्ने प्रैंक किए रेडियो पे, मैं की दसा, वो बंदा काफ़ी चिर हो गया फिर भी। ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਚਲੋ हाँ जी, मैनू लगता है कि मतलब हाँ लेडी बनना मुश्किल है, लेडी होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। ये
साड़ी समाज की एक गल है बट 4 घंटों बाद मेरी दाढ़ी आ जाती सी ते दाढ़ी नाल साड़ी जाती नहीं सी तो मैं शेव करनी पैंती सी 4 घंटे बाद आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट हाँ जी मैनू अपने आप तो प्यार पहली बार ही होया मैं इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कभी सीगा ही नहीं मैं पहली बार आई हैव बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड आफ्टर वाचिंग दिस फिल्म मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ जैसे आर्टिकल 15 यूनिफॉर्म मैसेज नहीं कहा यूनिफॉर्म कर लिया मतलब थोड़ा मतलब यूनिफॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ हॉट लगते हो पहली बार उन्होंने ये करने लेके आना हाय सर हाय पूजा बोल रही हूँ वेलकम पूजा जी सर मेरे को ये पूछना था आपने 45 डिग्री सेल्सियस पे इतना असेंबल होके परफॉर्म किया पहले तो कितना चैलेंजिंग था इट वॉज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि मथुरा में शूट कर रहे थे हम 45 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मली हम चंडीगढ़ में इतना टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों के टाइम पे सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मेकअप पिघल रहा था लहंगा चुभ रहा था पता नहीं इतने भारी भारी लहंगे के होते हैं और हमें पता लगा कैन के बारे में यू पुट कैन अराउंड लहंगा इट्स वेरी डिफिकल्ट हाउ डू मैनेज दिस बट फुल रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन आउट देयर एंड ड्रीम गर्ल 2 ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए आई थिंक अब तक की सबसे चैलेंजिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 है ड्रीम गर्ल 1 भी आई है उसके बाद एक बॉक्स ऑफिस सेट हो जाता है इससे और भी हाई लेवल पे रीच जाएगा तो इसमें तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस आए होंगे चैलेंजेस तो ये था सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप स्क्रिप्ट उस लेवल तक बेंचमार्क तक पहुंच पाए जो ड्रीम गर्ल 1 की स्क्रिप्ट थी अब ये आजकल एक थ्योरी चल रही है कि सीक्वल्स चल रहे हैं तो थैंकफुली हमारा भी सीक्वल है एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म काफ़ी टाइम से कॉमेडी फिल्म नहीं आई है सो आई रियली एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इट ये कोविड के बाद ही शूट हुआ है 21 में इस रिलीज हुई थी बट ये नहीं लिखी तब उन्होंने तब थी लेकिन वी स्टार्टेड शूटिंग इन 2022 हाँ जी हेलो आयुष्मान सर सिंगल हंस फ्रॉम देसी चैनल जैसे कि हमने पूजा की आवाज़ सुनी है आपसे तो आपने कभी रियल लाइफ में प्रैंक किया अपने किसी सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ या आपने किसी इस सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ नहीं किया लेकिन रियल लाइफ में मैंने रेडियो पे जरूर प्रैंक किया है मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उसके पापा जब फ़ोन उठाते थे मैं 14-15 साल का था तब मैं लड़की के बाद में बात करता था पापा उठाते थे उसके तो फ़ोन दे देते थे अपनी बेटी को तो ये हो चुका है मेरे साथ उसका बहुत हाँ बात हो जाती थी एंड परी Manjot, hi, I'm Gurnaaz from Tribune. Hi, how are you? Good, how are you? Very well, very well. So, this is your second film with Ayushman. Yes, And what is the kind of bond that you both share? And can you tell us 3 things that we probably don't know about Ayushman? I think कुछ दसने की लोड़ नहीं Go for it, man. I'm just kidding. तीन ही बहुत सारी हैं बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं पाजी में ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ वेरी मतलब हम मतलब एक होता है ना जब मैं पहली बार नरेशन ले रहा था ड्रीम गर्ल 1 का तो एक ना मुझे था कि यार पता नहीं कैसा होगा क्या होगा कनेक्शन कैसा बैठेगा तो बट एक पंजाबी वाइब आई एकदम से आंखों में कनेक्शन हो गया भाई अब फन करना है फिल्म में तो वो वाइब हमेशा आई है और अपनापन है और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं सेट पे और बहुत केयरिंग है यानी कि मैं कहीं पीछे रह गया तो नहीं वेरी सपोर्टिव ऑलवेज तो आई लव दिस थिंग अबाउट हिम So sweet, yeah. Thank you, Manjot. Love you. Ayushman, is there something that you want to tell us about Manjot? Manjot is a very simple guy and I love simplicity. I love working with people who are simple, not very complicated. Because as an artist, if you're simple and you're rooted, so I guess you're more malleable as an artist. So I really love that about him. हाय अनन्या क्योंकि ਤੁਸੀਂ फर्स्ट आपके लिए कितना चैलेंजिंग था क्योंकि आप फर्स्ट में नहीं थे तो सेकंड में सीक्वल में जब आप आते हो तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती है तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो नहीं डेफिनेटली चैलेंजिंग था क्योंकि पहली वाली पिक्चर हिट थी और ऑलरेडी उन्होंने साथ में काम किया था तो मुझे लगा कि मैं बाहर से आई हूँ क्या मैं उनके साथ दोस्त बन पाऊँगी कैसा लगेगा मुझे आकर ख़राब नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी सेट था पर मुझे बहुत मज़ा आया बहुत अपनापन लगा जब हम शूट कर रहे थे सब बहुत सपोर्टिव थे जो भी सीनियर्स भी हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की एंड या आई जस्ट वांटेड टू हैव फन व्हेन आई वाज डूइंग इट क्योंकि मेरे डैड हमेशा कहते हैं जब आप कॉमेडी फिल्म कर रहे हो डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली जस्ट लर्न हाउ टू हैव फन एंड वर्क विद गुड पीपल एंड दैट वाज द फिल्म या मुझे इस फिल्म में लगी कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ तो अच्छा ही होगा आयुष्मान भाई
ਚੰਗੀ ਪਾਂਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? चंकी पांडे जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई हैव सीन बहुत सारी फिल्में उनकी मैंने देखी हैं। मेरी पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में देखी थी तेज़ाब थी, और मैंने परसों ही अनन्या को बताया कि पहली फिल्म तेज़ाब थी और चंडीगढ़ सर का उनका बहुत अच्छा रोल था। एंड हमारी फिल्म में भी प्रमोशन करते समय उन्होंने एक फ़ोन कॉल प्रैंक कॉल की थी मेरे साथ विच वॉज वेरी वेरी फनी एंड हिज सेंस ऑफ टाइमिंग इज़ ग्रेट। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗਏ ਆ? यार घर जाने का टाइम नहीं है, वी हैव टू गो टू जयपुर आफ्टर दिस। मैं खुद नहीं जा पा रहा घर तो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी, उन्होंने एवरी सारे बॉम्बे में ही हैं। लाइक माय मदर स्टेज विद अस नाउ एंड या देयर इज नोबडी एल्स। हाय आयुष दिस साइड, Hi. मुस्कान फ्रॉम दिस साइड। Hi, मुस्कान। आयुष, जैसा कि बॉलीवुड में बहुत सारे जॉनर्स हैं, कोई लव जॉनर में एक्सपर्ट है, कोई एक्शन जॉनर में पसंद है, सबको मतलब एक अलग अलग सबका एक जॉनर बना हुआ है। आपका एक अलग जॉनर है, हटके जॉनर, आयुष जॉनर, जो कि मतलब सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मूवी से ही अब तक मतलब बधाई हो, विकी डोनर और जितनी भी मूवीज हम देखें उसमें एक अलग टॉपिक होगा तभी आयुष हमें उस मूवी में दिखेंगे। तो ये डिस्क्लेमर आपने लगाया हुआ है डायरेक्टर्स के लिए, या फिर क्या है कि डायरेक्टर्स आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, या फिर आपने पहले ही बोल रखा है कि कुछ हटके होगा तो ही आना? मतलब कोशिश तो यही रहती है कि जब तक एज एन आर्टिस्ट आप कुछ अलग ना कर पाए जो हिंदी सिनेमा में पहला ना देखा हो, कुछ ऐसा टॉपिक आप लेकर आए ना। आई थिंक इट्स जस्ट मुझे मैं एक ऑडियंस की तरह स्क्रिप्ट को कंज्यूम करता हूँ। ऑडियंस जैसे आप देखते हैं फिल्म में मैं नरेशन लेता हूँ, मैं पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता हूँ, अगर मुझे मज़ा आ रहा है और मैं इंट्रीग हो रहा हूँ, एक नए टॉपिक पर बात हो रही है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें भी यही है, पिछले 20-25 साल में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें एक एक्टर में लीड जो है वो फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, सो इट्स वेरी डिफरेंट। जब आप फीमेल कैरेक्टर करते हैं लगता है ना ऑडियंस का इंटरेस्ट था कितने ना कितने बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर स्ट्रीमर्स बने हैं, वहाँ मेरे तेज देशमुख की गल करिए तो थोड़ा लगता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ता है कि साਡਾ फेवरेट एक्टर अलग डिफरेंट किरदार बेचारा अलग डिफरेंट लुक विच नजर आएगा। बिल्कुल जी, आई थिंक जब तक कुछ डिफरेंट करने का मौका नहीं मिलता तो खुद मज़ा नहीं आता एज एन एक्टर। पहले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਮਲ ਹਸਨ ਸਰ ਚਾਚੀ 400 ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 90s 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਗੋविंदा ਸਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਮਿਰ ਸਰ ਦੀ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਰ ਦੀ। तो आई थिंक ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है सारे, एंड आई थिंक ऑडियंस ऑलवेज वांट्स टू लुक समथिंग डिफरेंट। ये डिपेंड करता है कि राज शांडिले ते बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। आई थिंक उन्होंने कोल पूरे आइडियाज़ का भंडार है एक। आई थिंक ही व्हेन ही ब्रीथ्स he just says different punches and he is very funny, so I'm sure उन्होंने कोई आइडिया तो होना ही है। आयुष्मान सर, It really depends on the subject. If I get to do something very out of the box, away from my core genre, I would love to do something on OTT for sure. सर खुशी है फ्रॉम डेली पोस्ट। ओके सर, पूजा के करैक्टर में कितना टाइम लगता सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? मुश्किल तो वही है जी, बंदे नूं कुड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। पहली गल तो है तुसीं ट्रेलर देखा होना है कि मैं बोल रहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक असेंबल्ड हूँ मैं, सो दैट वाज प्रीटी टफ। फिर भी स्किन तो मेरी सी सोल आत्मा जी सी वो कुड़ी सी पूजा दी सी 3 घंटे लगते सी तैयार होने, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू शूटिंग इन समर्स 40 डिग्री सेल्सियस में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है बिकॉज यू आर बीइंग अवेक, तो पसीना भी आ रहा है। I think it's very difficult. I lost 10 kgs for this one because चंडीगढ़ के राज की मेरा कुछ I think I was very bulky for that, but in this one I lost it, yes. Okay. Hi, Manzoor Kamari this side from the Sportsman. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਈਟ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ सेंस ऑफ ह्यूमर कह लो, वो वाइब कह लो, वो देख के जितना मज़ा आता है, तो उस चीज़ को इंजॉय करते करते चैलेंज कितना रहता है, प्रेशर और स्ट्रेस कितना रहता है अपने करैक्टर में जस्टिफाई करने के लिए उस वाइब के नाल। चैलेंज
का तो मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि जो मैं करता हूँ, जो मुझे बोला जाता है, मैं वैसा थोड़ी बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, थोड़ा कैरेक्टर प्रिपेयर करते हो कि अच्छा इसमें जैसे आई एम प्लेइंग स्माइली, तो वो बड़ा विटी बंदा है, हाजिर जवाब देता है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पास सॉल्यूशन है। और इस फिल्म में ये है कि मैं जो कहानी आगे बढ़ रही है वो मेरी वजह से ही बढ़ रही है, मैंने ही सारे स्यापे करे हैं इस फिल्म में। तो एंड आई थिंक मेन क्रेडिट गोज टू राज चंडेला सर, जो डायरेक्टर है। उन्होंने इतना इसको ब्यूटीफुली लिखा है, इस फिल्म को, इस स्क्रिप्ट को, एंड उनके पास इतने सारे पंचेज होते हैं। एंड मुझे याद है मैं कभी भी जाता था उनके पास पूछने के लिए कि सर मैं इसमें क्या लूँ, एंडिंग में कोई डायलॉग बोलना है तो वो 10 ऑप्शन देते थे और मुझे 10 मिनट लगते थे हंसते हुए कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, फिर मैं जाके कैमरा के आगे टेक दूं। तो आई थिंक उन्होंने बहुत एक कंफर्ट फील कराया है, उन्होंने अच्छी लाइंस दी हैं, अच्छा एक कैरेक्टर बिल्ड किया है स्माइली का एंड सबका ऑब्वियसली। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ एंड या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। वैसे all right, so this is the last question, you can take that. My dream role in life, मुझे I want to play either a musician or a dancer on screen, क्योंकि मुझे अपने रोल के लिए like I want to learn a skill set that I can use to a classical music singer or a classical dancer, something like that. Yeah. What was the pressure on you to reach this dream? Luckily, I'm already a girl, so I didn't take that long. I took 45 minutes. There was no pressure. From Ayushman, I get the feeling that I get in Chandigarh. That apnapan, homely, chill, wali feeling. I get that feeling from him. He's very, very easy to work with. But you still get to learn so much from him, and that's always nice, And I wish I can work with him again. It was a lot of fun. He was very well prepared. I didn't have to teach him anything. We have makeup artists actually, they do a pretty good job. All right guys, thank you so much. वैसे मैं एक बात बताऊं, लोगों ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, मेरे दिल में कोई सवाल नहीं, क्योंकि सवाल है ही नहीं इसका, like it's going to be a big hit. Don't you think so? Thank you.